Hello everyone. Hope you all are fit and fine. This is your maths lecture, and here today we will discuss some more topics of chapter 3, that is give and take. This you all know that our chapter 3 is give and take. As you all know that we have started this chapter earlier, and this is second part of chapter 3. So today we will start from page number 31. New topic, that is find my food. So you all are requested to open your maths book page number 31. Students, focus on your book, or you can see on a screen, same page is on your screen also. Let's see what is given here. So, your new topic is find my food. Let's read. Hey, I have something more interesting for you. Ma told me there are things to eat in some rooms. Help me find those room numbers. Mark them in my home. See what you get. So, first, let me remind you that here we are doing chapter 3rd, give and take, and we have done few parts of this chapters where you have learned something how to do addition, and that addition you have done with the help of number grid of Kittu's house. Kittu's house, there are many rooms in Kittu's house, and from there you have learned how you have to go to further house, how many jumps you can take to go in further room, or how many steps you are required to move. This all we have discussed in our prior video. Now this is here, the same Kittu is again here, and now she is telling to us that her mother has told her about something that she has kept for her in some rooms to eat. But now what is our role? Here we have to help to Kittu to find those rooms where things are kept. तो क्या करना है, ये नंबर ग्रिड जो है आपको पहले से पता है। ये नंबर ग्रिड क्या है? किट्टूस के रूम्स हैं। इन रूम्स में से किसी भी रूम में किट्टू की मदर ने कुछ ईडेबल आइटम्स रखे हैं, कुछ खाने का सामान रखा है। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू हेल्प किट्टू टू फाइंड दैट रूम। वो कौन सा रूम है? सो फॉर दैट वी हैव टू सी फर्दर व्हाट इज गिवन देयर। So students, turn your page and come in page number 32. Now see, one example is given here. 47. So how this 47 came? 47 came by the addition of 10 in 37. As you can see here, this is 47 is the answer. How this 47 came? So 37 plus 10, so 47 means 37 रूम नंबर से आप 10 जब आप जंप करें, देन यू 10 स्टेप्स आप मूव करें, 1 जंप आपने किया, एंड देन यू रीच टू रूम नंबर 47. वाई आई एम सेइंग लाइक दिस यू कैन सी फ्रॉम हियर. सी page here you can find room number 37, and then you have to move 10 steps, then you will easily reach to room number 47. As it is given here, 37 plus 10 is equals to 47. So let's see how you will reach to this 47 from that number grid. Now see, this is 37, this is 37. Now what it has said, you have to move from this 37 to 47. And how you will move? You have to move 10 steps. How you will move 10 steps? See, right side from 37, 38, 39, 40, then 41, 42, 43, 44, 45, 46. Now count from 37.
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 एंड 47। अब देखिए जो 47 में आप पहुँचे कैसे गए। 37 से काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आपने 37 में 10 प्लस कर दिया देन यू रीच्ड टू 47. So in this way you have found that when you move from 37, after 37 you will move 10 steps, then you will reach to 47. तब आप कहाँ पहुँच जाएंगे? 47 में पहुँच जाएंगे. ओके. Now you can see that another is given here 37 plus 9. So now you have to find that 37 plus 9 is equals to कितना होगा? So again you can check the grid. 37 plus 9. This is your 37, right? This is 37 now. Plus 9 you have to move. So 1. This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5. This is 6. This is 7. Then this is 8. And this is 9. So if you will see in 9, when you are adding 9 or you are moving 9 steps forward from 37, but you are getting 46. So answer will be 46. I hope you are able to understand. मैंने क्या करा, 37 से मैं 9 steps आगे बढ़ गई. This is 1, then 2, then 3, then 4, 5, 6, 7, 8 and 9. तो 9 step में मैं कहाँ पहुँच गई? 46 में पहुँच गई. So answer will be 46. Now see again, it is 62 minus 30. Next one, what it is asking? 62 minus 30. So what it should, see, you can directly also solve. 62 minus 30 will be, what will left here? 32. Simple. Answer will be 32. But still if you want to do that, in this way also you can check from the grid. See how. Find where is 62. This is 62. Okay. Now you have to detect 30 from 62. And this is a starting point 1. Now from here you have to detect 30. Simply cut these lines. We are not going to count from here. Now start counting from 31. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, then 12, then 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 and 32. कहाँ पहुँच गए आप? 32. 32 जब आप मूव करें तो आप कहाँ पहुँच गए? 62 में. So when we deduct 30 from 62, how many number you are getting? 32. So answer will be 32. आप simply भी minus कर सकते हैं as you know how to do subtraction. And बाकी you can check from this grid also. आप इस grid से भी check कर सकते हैं. इस grid में क्या था? इस grid में देखिए हमें 62 मैंने अपनी final destination ले ली और 30 उसमें से डिडक्ट करने थे. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1 से मैंने 30 तक बिल्कुल कट कर दिया. तो जो भी पोर्शन बचा आप उसे काउंट करेंगे एंड इट इज़, व्हाट इज़ द आंसर देन? 32. You can see here 1 2 3 4 5 6. आप ऐसे बढ़ते जाएंगे, काउंट करते जाएंगे तो आप यहाँ पे आपका 32 आ जाएगा. इन दिस वे यू कैन फाइंड द आंसर. Now see, as you come to know, answer of 62 minus 30 is 32. Now see what this aunt is saying here. Will it be easier to go to 46 plus 30 first, so that you can see 46 plus 30 but you will get the answer? You can check that. Now see next what is given here, 46 plus 28. So what you will get? 46 plus 28 कितना आएगा? How you will come to know? You can count from the grid
फर्दर 46 से आगे 28 और काउंट कर लीजिए आप ग्रिड से, देन ऑल्सो यू कैन गेट द आंसर, और यू कैन काउंट डायरेक्टली फ्रॉम हियर. If you will add directly, then what you will get? 74 is the answer. 46 plus 28 is 74. But if you want to check from the grid, so I am showing you that also. In that way also you can do. So student, what we have to add? 46 plus 28. So see, first we will find, this is 46, this is 46. Now we have to further add 28 here. Okay, so how we will do? 46 is already there and 28 we have to count. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 and 28. So where we are now? Where we reached? We reached till 74. हम किधर पहुँच गए? हम 74 में पहुँच गए. So what is our answer? Our answer is 74. When you add 28 in 46, what you will get the answer? You will get the answer 74. This you can simply do by addition also, and if you want to check in this grid you can check here also. ठीक है, अभी हमने स्टार्टिंग पोजीशन 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 को अभी हमें यहाँ पे 46 ऑलरेडी है, 46 के बाद 28 लेना है. तो 1 तो हमारा 46 वाले पार्ट में ही आ गया. जब 1 से 46 तक काउंट हुआ तभी तो 46 एक आ गया ना. सो आफ्टर 46 हमें फिर 28 ऐड ऑन करना है. तो हमने 46 के बाद 28 काउंट करा, देन वी रीच टू 74. So our answer is 74 here. Now again you can see similarly how you will do this. Now what is given here? 87 minus 14. So as you know the subtraction, you can simply subtract 14 फ्रॉम 87. वो आप बहुत इजीली कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे? 87 ऊपर लिखेंगे, 14 नीचे लिखेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर. दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे. अभी हम क्या कर रहे हैं? हम जो भी कर रहे हैं हम उसको एक बार ग्रिड से भी चेक कर रहे हैं. सो लेट्स सी अगेन इन द सेम ग्रिड दैट व्हाट आंसर यू विल गेट इफ़ यू विल डिडक्ट 14 फ्रॉम 87. So students, you can see grid is on your screen. Here what is our total number? 87. 87 is there and we have to deduct this 14 from this 87. तो हमें क्या करना है? 14 को डिटेक्ट कर देना है. अभी ये 87 तो 1 से लेके 87 तक पूरा एक नंबर हो गया. अभी हमें क्या करना है? 14 डिटेक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे? 14 नंबर्स को कट कर देंगे ग्रिड में. ये आ गया, ये 14 तक आपने क्या करे? सारे नंबर्स को कट कर दिया. 14 तक हम जो भी नंबर्स हैं वी विल नॉट सी दीज नंबर्स. ओके, ये हमने 14 तक के किसी भी नंबर को नहीं देखा. नाउ व्हाट इज़ आवर रोल? वी विल काउंट फ्रॉम 15. हम 15 से 87 तक काउंट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 66 67 68 69 70 71 72 and 73. What is there? What answer we got?
73। जब हमने टोटल 87 नंबर्स में से 14 नंबर्स को कट कर दिया एंड वी स्टार्टेड काउंटिंग फ्रॉम 15 टिल 87, तो हमारे कितने नंबर्स बच गए? 73 नंबर्स बच गए. सो द आंसर विल बी 73. सेम यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑल्सो. आप ऐसे काउंट करके भी ग्रिड से, अब देखिए जो मैंने ग्रीन कलर से किया है, इफ़ यू विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 15 टिल 87, 73 विल बी द आंसर. और अगर आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगेन 73 विल बी द आंसर. नाउ सी स्टूडेंट्स, हियर नेक्स्ट इज 62 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 43. नाउ वी हैव टू फाइंड आंसर हियर. हमें क्या करना है, 62 दिया है एंड फाइनल आंसर 43 दिया है. अब हमें ये पता करना है कि ये सेंटर पे कितना आएगा. ओके, सो हाउ वी विल फाइंड दिस. हमें क्या करना होगा इसके लिए? व्हाट वी विल डू, सिंपली वी विल टेक 62 माइनस किससे कर देंगे, 43. When you will deduct 43 from 62, what you will get? Let's see. This is 12. 12 हो जाएगा. 12 minus 3 is 9. And 6 की जगह पे क्या बच गया आपका? 5. 5 minus 4 is 1. So the answer will be 19. आंसर कितना आ जाएगा? 19. It means कि जब आप 62 माइनस 19 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 43. आंसर विल बी 19 हियर. जब आप 62 माइनस 19 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 43. ये 19 हमें कैसे पता चला? ये 19 हमें ऐसे पता चला कि हमने जो हमें इन्होंने आंसर दिया था 43 और जो एक दिया था सब्ट्रैक्शन का बड़ा डिजिट, उन दोनों को हमने आपस में सब्ट्रैक्ट कर लिया. नाउ दिस यू कैन चेक बाय योर सेल्फ ऑल्सो. अभी 19 जो आंसर आया आप उससे रीचेक कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? 62 इज़ गिवन देयर. ओके, 62 में आंसर क्या आ गया? 19. 19 आपको क्या करना है? माइनस करना है. 19 को माइनस करेंगे, व्हाट यू विल गेट? सी, 12 माइनस 9 3 बच गया एंड दिस बिकेम 5. 5 माइनस 1 4 बच गया. तो इन्होंने आपको 43 तो दिया था. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. सो व्हाट वी हैव डन हियर गाइस कि 62 डैश 43 था, तो 62 बड़ा डिजिट है, 43 छोटा डिजिट है. सो वी हैव सब्सट्रैक्टेड 43 फ्रॉम 62 एंड वी गॉट 19. तो 19 हमारा आंसर आ गया. अगर हमें कोई भी डाउट था तो फॉर रीचेकिंग हमने 62 माइनस 19 अगेन वी हैव डन दिस. सो बट वी आर गेटिंग 43 जो कि उसने खुद से दिया है. सो आवर करेक्ट आंसर इज 19. सो व्हाट विल कम हियर? 19. 62 minus 19 is equals to 43. Now see beta, next is 45 plus dash is equals to 99. अभी क्या है, अभी आपको फिर से एक डिजिट उधर का निकालना है और 45 plus dash is equals to 99 है. Now here you can see one difference from above one कि ऊपर वाले में एक तो माइनस दिया था, 62 माइनस था और यहाँ 45 प्लस है. लेकिन उसके साथ आपने देखा कि माइनस वाले में हमारा 62 हमारा पड़ा था. अभी आप देखेंगे इधर 45 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 99. अब आप इसमें देखेंगे कि जो हमारा आंसर दिया है 99 दैट इज़ ग्रेटर, और जो सम वाला पार्ट है, जो क्वेश्चन वाला पार्ट है 45 दैट इज़ स्मॉल. अभी हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन का ही पार्ट निकालना है. हमें 2 पार्ट्स दिए गए हैं. तो सी नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सब्ट्रैक्ट this 45 from 99. अभी क्या करना है आपको, 45 को 99 से सब्सट्रैक्ट, 99 को सब्सट्रैक्ट करना है 45 से, सो दैट यू कैन गेट द आंसर. कैसे मिलेगा अभी देखेंगे. सी बेटा, हियर बट इट इज़ गिवन 99. क्या दिया है? 99 दिया है. 99 और 45 दिया है. So when you will subtract this 45 from 99, आपको क्या मिलेगा?
9 minus 5 is 4 and 9 minus 4 is 5. So what is your answer? 54. अभी आपका कितना आ रहा है? 54 आ रहा है। अब देखो हमने क्या किया, इन्होंने पहले वाले में भी हमने 62 वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी हमने माइनस किया, ये 45 वाले में भी हम माइनस कर रहे हैं, पर डिफरेंस क्या था, ऊपर वाले में क्वेश्चन में दिए गए हुए नंबर बड़ा था, यहाँ पे आंसर का जो नंबर आया है वो बड़ा है, तो जो बड़ा नंबर होगा हम हमेशा माइनस के लिए पहले उसे लिखेंगे। दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। सो 99 माइनस 45 व्हाट वी आर गेटिंग 54। अभी ये 54 सही है या नहीं, हाउ यू विल कम टू नो दिस, इसके लिए यू हैव टू रीचेक। अभी रीचेक कैसे करेंगे, यू कैन रीचेक लाइक दिस। 45 आपको ऑलरेडी दिया है, कितना दिया है? 45 आपका ऑलरेडी दिया है, राइट? 45 पहले से दिया हुआ है। 54 आपका आंसर आ गया, 54। अभी इन दोनों को ऐड करके देखिए, व्हाट यू आर गेटिंग, 5 + 4 9 एंड 4 + 5 इज ऑल्सो 9। सो यू कैन चेक कि जो 99 दिया है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। 45 + 54 इज़ 99 एंड 99 माइनस 45 इज़ 54। तो आप देख सकते हैं जब हमने 99 से 45 को माइनस करा तो हमें कितना मिला? 54। और वो 54 हमारा करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए हमने दोनों को प्लस कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है? 45 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 99, तो डैश की जगह पे हमारा 54 आया। हमने 45 + 54 करा, सो व्हाट वी आर गेटिंग 99। इट मीन्स इट इज़ करेक्ट बिकॉज 99 तो उसने खुद से दिया है। सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व दीज सम्स, राइट? Now see beta, what is given here, another one is this, dash plus 26 is equals to 75। अभी क्या है, आपको फिर से क्वेश्चन का पार्ट पूछा है और आंसर का पार्ट दिया है। आंसर में कितना आ रहा है? 75 आ रहा है, और क्वेश्चन में आपको ग्रेटर डिजिट पता करनी है और स्मॉलर मतलब चलिए ग्रेटर वैसे होगी, इट विल बी आइदर, नहीं भी है तो डजेंट मैटर। आप ये बताइए कि एक डिजिट आपको, एक नंबर आपको प्लस करने के लिए दिया है और दूसरा नंबर आपको पता करना है। डैश प्लस 26 इज इक्वल्स टू 75, क्या दिया है? डैश प्लस 26 इज इक्वल्स टू 75। अभी हमें अब जो फाइंड करनी है वो क्वेश्चन के साइड वाली नंबर को फाइंड करना है। अभी हम क्या करेंगे, वी विल सिंपली माइनस द गिवन 26 विथ 75। अब अभी हमें 26 को अगर 75 से माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो भी होगा हमारा वो निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 75 दिया है, इट इज़ ग्रेटर डिजिट, 26 हमारे छोटा नंबर है, 75 हमारा बड़ा नंबर है। हम जब इस 75 में 26 को माइनस करेंगे सो वी विल गेट द अनदर नंबर, we will get the other number. Okay, how? Let's see. So students, this is 75 and then it is 26, so you can subtract the both. अभी आप दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा? 15 हो जाएगा। 15 minus 6 will be 9 and this 7 will become 6 and 6 minus 2 will be 4. 6 minus 2 will be 4. So what we are getting? 49. इसका मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? 49 आना चाहिए। 49 plus 26 is equals to 75। अब ये सही है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? तो आपको क्या करना है, आपको 49 plus 26 कर लेना है। जब आप 49 plus 26 करेंगे और आपका आंसर करेक्ट 75 आएगा, इट मीन्स यू हैव डन करेक्ट सम। ये हो गया हमारा 49 और इट इज़ 49, ये हो गया हमारा 26। इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, व्हाट वी आर गेटिंग 9 6 15, 5 1 कैरी, 4 5 6 एंड 1 7। सो व्हाट इज़ देयर 75। क्या आ रहा है हमारा? 75 आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 75, और 75 तो बुक में भी दिया है, इट मीन्स इट इज़ करेक्ट। तो ये 49 कैसे आया? जब हमने इस 26 को 75 से माइनस किया।
75 minus 26, then we are getting this 49. Okay. Now students, you can see here another sum, that is this one. Dash minus 1 is equals to 1. I hope you people are getting this idea. ये तो वैसे ही बहुत ईजी है. खुद सोचिए, आपके पास कोई चीज़ थी, उसमें से आपने एक ले ली तो आपके पास एक ही बची. सपोज देर इज सम आइटम एंड फ्रॉम दैट आइटम यू हैव टेकन वन विद यू, सो ओनली वन इज लेफ्ट. तो कितना नंबर होगा? सिंपली इट विल बी 2. बट हाउ वी विल चेक फ्रॉम हियर? हम क्या करेंगे? वन ऑलरेडी दिया है आंसर में, आंसर वाले वन को और क्वेश्चन वाले वन को, दोनों को व्हाट वी विल डू? वी विल ऐड. सो व्हाट वी आर गेटिंग? 2. अगर हम यहाँ पे 2 लिख दें तो देखिए, इज इट करेक्ट? 2 minus 1 इज इक्वल्स टू 1. येस, दिस इज करेक्ट. इन दिस वे ऑल्सो वी कैन चेक. ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा. तो यहाँ क्या आया? 2 इन 2 minus 1 इज इक्वल्स टू 1. सी, ये तो मैंने आपको एक सिंपल एक ऐसे तरीका बताया जिससे आप कर सकते हैं. अभी आई कैन टेल यू वन मोर ईजी वे टू सॉल्व दिस. देखिए, मैं इन सब के आंसर्स आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे. अभी दिखाती हूँ करके. So student, though I have told you how you have to do, but now I am going to tell you one trick of solving this. ऐसे वाले एडिशन और सब्ट्रैक्शन जिनमें कोई एक चीज़ नहीं पता होती क्वेश्चन की, उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ. उस ट्रिक से पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी नंबर अगर इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड और इक्वल टू के राइट हैंड साइड लिखा होता है, लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिखा होता है, तो क्या होता है? उनके एक्सचेंज होने में उनके साइन बदल जाते हैं. साइन बदल जाते हैं मतलब, मान लीजिए अगर यहाँ पे +4 है, तो +4 अगर इक्वल टू के इधर जाएगा तो वो किसी भी नंबर के साथ -4 हो जाएगा. मान लीजिए इधर पे +6 है, तो वो किसी भी नंबर के साथ जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा? इधर जाके -6 हो जाएगा. अब मान लीजिए इधर कोई नंबर हमारा -10 है, अगर वो इस साइड मूव करता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा? +10 में चेंज हो जाएगा. फिर सोच लीजिए हमारे पास सपोज इधर -2 है, ये -2 इधर साइड जाएगा तो दिस विल गेट चेंजेस इनटू +2. तो अभी मैंने जो आपको ये बताया, इसमें क्या बताया यहाँ पर कि जो मैं ट्रिक बताने जा रही हूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि जो इक्वल टू से हमारे जो हम नंबर शिफ्ट करते हैं, इक्वल टू से जब दूसरी साइड वो मूव करते हैं तो उनके साइंस चेंज हो जाते हैं. सपोज़ जो एडिशन वाला था, जो आपका एडिशन वाला था वो क्या बन गया? सब्ट्रैक्शन. देखिए, एडिशन वाला यहाँ जाके क्या बन गया? सब्ट्रैक्शन. यहाँ से सब्ट्रैक्शन वाला इधर साइड गया तो किस में चेंज हो गया? एडिशन में. यहाँ से सब्ट्रैक्शन वाला गया, किस में चेंज हो गया? एडिशन में. तो अभी जो आपको समझना है वो ये समझना है कि जब कोई भी नंबर इक्वल टू से डायरेक्शन चेंज करता है, अपनी डायरेक्शन पोजीशन को चेंज करता है, साइड्स को चेंज करता है, इक्वल टू के आगे या पीछे जाता है, तो उसका साइन चेंज हो जाता है. तो जो प्लस वाला होता है वो माइनस में बन जाता है और जो माइनस वाला होता है वो प्लस में बन जाता है. अब देखिए, ये करके फटाफट मैं आपको इनके आंसर्स बताऊंगी. अब वो कैसे होगा, लेट्स सी. नाउ यू कैन से स्टूडेंट, फर्स्ट इज 62. ठीक है. अच्छा, एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम कौन से को मूव करवाएं जो हमारे स्मॉलर नंबर हो. स्मॉलर नंबर को ही मूव करवाएंगे, तो क्योंकि स्मॉलर नंबर का जब साइन चेंज होगा तो आंसर में साइन चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो हम स्मॉलर नंबर को मूव करवाएंगे. देखिए, अब इसे करते हैं. 62 वाले का हमने आंसर फाइंड करना है. 62 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 43. अब यहाँ पे कितना आएगा? हाउ वी विल कम टू नो दिस? हम सबसे पहले क्या करेंगे? 62 लिख देंगे. 62 लिख दिया. अब बेटा ये देखो, दिस इज 43. 43 इज़ स्मॉलर, तो 43 को मूव कराते हैं. जहाँ कोई साइन नहीं होता वहाँ पे मतलब प्लस का साइन होता है, तो 43 यहाँ पे क्या है? प्लस साइन में है, क्योंकि 43 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है. 43 प्लस में. अब 43 हमारा इधर साइड आएगा, इक्वल टू के साइड आने में मैंने क्या कहा था? साइन चेंज हो जाते हैं. तो जो प्लस के 43 था वो क्या हो जाएगा? -43. तो हम 62 माइनस 43 अगर करते हैं सिंपली, सो व्हाट वी आर गेटिंग आंसर? ट्राई. 12 minus 3 is 9 and 5 minus 4 is 1. So simply we are getting answer 19. क्या आ गया आपका यहाँ पे?
सिंपली क्या आ गया, 19 आ गया आंसर, राइट। अभी आप दूसरा करके देख लीजिए। अब देखिए सेकंड वन, देखिए हियर दिस इज 45, दिस इज 99। अभी यहाँ पे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 45 वाला है। तो मैंने क्या कहा, हम स्मॉलर नंबर को मूव करा देंगे। अभी हमारा जो स्मॉलर नंबर है वो है 45। 45 किस में है, प्लस साइन में है। अब हमें क्या करना है, देखिए मूव हम 45 को कराएंगे। 45 अगर इधर साइड मूव करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, -45। किस में चेंज हो जाएगा, -45। अब आप करके देखिए, दिस इज 99 -45। तो आपको कितना आंसर मिल रहा है, 9 - 5 इज 4 and 9 - 4 is 5. So your answer is 54. आपका आंसर आ कितना रहा है, आपका आंसर आ रहा है 54। यही तो आंसर आ रहा है ना आपका, 45 + 54 कर लीजिए, आपको 99 मिल जाएगा। इट इज़ सो ईजी। फिर से दिखा देती हूँ एक करके। दिस इज, जैसे सपोज देखिए ये है 57 - 20 माइनस डैश इज इक्वल्स टू 20। अभी देखो बेटा, यहाँ पे जो हमारा स्मॉलर नंबर है वो क्या है, 20 है। 20 इज़ अवर स्मॉलर नंबर। अभी हम क्या करना है, मैंने क्या कहा था, स्मॉलर नंबर को मूव करवाएंगे। 20 के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स 20 इज़ इन पॉजिटिव, प्लस के साइन में है 20। अब हमने ले लिया 57, ओके। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, इसको जब हम 27 को इधर ले जाएंगे तो 27 क्या बन जाएगा, 27 आपका बन जाएगा, सॉरी दिस 20 आपका बन जाएगा -20। क्या बन जाएगा, -20। कितना बन जाएगा, 57 - 20। अब आप 57 - 20 करिए, आपका कितना आता है, दिस इज 7 एंड दिस इज 3। व्हाट इज द आंसर, 37। कितना आ रहा है, 57 - 20, 37 आ रहा है। सी हियर केयरफुली, मैंने बोला आप इस 20 को इधर ले जाइए, इस 20 को इधर ले जाइए, मीन्स 20 की साइड चेंज करेंगे, 20 की साइड चेंज करेंगे। जो 20 यहाँ पे प्लस में था वो माइनस में चेंज हो जाएगा। अभी ये आपका 57 हो गया, ये -20 हो गया। 57 - 20 किया, हमारा कितना आ गया, 7 एंड दिस इज 37। अभी 37 करेक्ट है या नहीं ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, 37 हमारा आंसर आया है, 37 यहाँ पे आंसर आया है, राइट। तो अभी हम क्या कर सकते हैं चेक करने के लिए, 57 - 37। माइनस क्यों कर रही हूँ, वो तो माइनस के साइन में ऑलरेडी दिया है ना, तो आंसर में रखेंगे तो 57 - 37 ही तो होगा। अब इसे चेक करिए, 7 - 7 इज 0 एंड 5 - 3 इज 2। सो वी आर गेटिंग अवर करेक्ट आंसर 20। हमें करेक्ट आंसर क्या मिल गया है, 20 मिल गया है। अभी देखो बेटा, आप ये वाला भी देख सकते हैं, हियर दिस इज ऑल्सो गिवन 43 प्लस डैश इज इक्वल्स टू 74। ठीक है, ये वाला सम चेक करिए, 43 डैश इज इक्वल्स टू 74। अभी इसमें देखो ग्रेटर नंबर को हम वैसे ही लिख देंगे, हमारा ग्रेटर नंबर क्या है, 74 है। सो आई एम राइटिंग 74 हियर, ओके। स्मॉलर नंबर क्या है, 43 है, 43 को मूव कराऊंगी। 43 इधर साइड में क्या है, प्लस साइन में। अगर 43 इक्वल है 2 के इधर साइड जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस के साइन में। तो 43 को जब हमने माइनस किया 74 से, सो व्हाट वी आर गेटिंग, 4 - 3 इज़ 1 एंड ये कितना हो गया, 3 4 5 6 7, व्हाट इज़ देयर, 31। अभी ये 31 सही है या नहीं हमें कैसे पता चलेगा, हमारा आंसर कितना आया, 31 आया। अब ये 31 सही है या नहीं कैसे पता चलेगा, आप 43 + 31 कर लो, आपको पता चल जाएगा। ये आपने 43 लिखा, ये आपने प्लस 31 लिखा। 43 + 31 करिए, 3 + 1 इज़ 4 एंड 4 5 6 7, 74 आ रहा है और यहाँ पे से 74 ही तो दिया था। तो आवर करेक्ट आंसर इज 31। ओके, सो स्टूडेंट आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग हाउ टू सॉल्व दिस। मैंने आपको सिंपल प्लस माइनस वाला भी बता दिया और एक बहुत अच्छा कंसेप्ट भी बता दिया कि अगर कभी भी ऐसे आपको आए जिसमें आपको क्वेश्चन वाली साइड का नंबर फाइंड करना हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो,
जिस भी साइड में स्मॉलर नंबर होगा उस स्मॉलर नंबर को मूव करवा दो। अगर स्मॉलर नंबर इक्वल टू की साइड मूव करवा दो। अगर स्मॉलर नंबर प्लस में है तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, अगर माइनस में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, और जिसमें भी चेंज हो रहा है वो चीज़ आप कर दीजिए, यू विल गेट सिंपली द आंसर। आई होप आप दोनों तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। So students, here many questions I have discussed, like this 87 minus 14 is left, एक शायद ये बचा है, 36 is equals to dash minus 8 is left, 100 is equals to dash plus 50 is left। तो इसको जो करेंगे आप लोग करेंगे, इसे मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ। दिस इज़ योर टर्न टू सॉल्व दिस। सो दिस इज़ पेज नंबर 32 एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व द रेस्ट। आपको पूरा ही देखिए, मैंने तो आपको बताया है, समझाया है, बट आपको क्या करना है, ये सारी ट्रिक्स यूज़ करके और सिंपल प्लस माइनस के वे में भी आप करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। बस जब भी आपका जो भी आंसर आएगा उसे रीचेक ज़रूर करिए। रीचेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी आपका आंसर आया है आइदर इट इज़ करेक्ट और नॉट। ओके स्टूडेंट्स, सो बेटा हियर टुडे वी विल डिस्कस दिस मच ओनली, क्योंकि अभी क्या है, मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं। इफ़ आई मूव फर्दर सो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, इसीलिए जब तक ये सिंपल प्लस माइनस ही, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको इसे समझने की ज़रूरत है। तो अभी हम इस वीडियो में एक ही टॉपिक पढ़ेंगे, दिस ओनली वी विल डिस्कस। From page number 33 we will discuss in our next video. Now what you all have to do, you all have to just solve this whole page 32 पेज नंबर आपको पूरा सॉल्व करना है। मेरा वीडियो देखिए, समझिए, अपनी रफ नोटबुक सामने रखिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द सम्स। आपको ज़रूर आएगा, डोंट थिंक कि नहीं आएगा, इट इज़ सो ईजी, यू विल गेट टू नो हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, and the rest portion of this chapter we will discuss later on. So beta, whatever today I have discussed, that thing you have to do only in your maths book. No need to do any given thing, any given work in maths notebook. Okay, so enjoy this video, learn this trick, learn how to solve such type of additions and subtraction. Then we will meet soon. I'll bring next video with some more topics related to this chapter. Till then, just enjoy this video and do your work. Thank you and have a nice day ahead.